Hello students. Today the agenda of this particular class that I am going to record for you is how to learn vocabulary. Now when I have been meeting students, those who are going to take admission in college, those who are staying at home because of the all institutions are closed, and what I find is that we have not been able to do anything in English. Unfortunately, most of you have not read anything. You have not bothered to go through newspapers because of any reason, and you have not been reading. Just anxiety and anxiety. Now what happens, if you just go back and see, since March we have spent around 7-8 months using almost no time but just waiting for lockdown to open, then colleges to open, then institutions to open. What we done? Nothing as such. So now the idea is, now as colleges are going to open, like admissions are there on the corner, around the corner, and then you have the hope that they will start colleges as they have been saying by November end or whatever. So we have got still 1 month to go and then months to come. And whenever you have the months to come to prepare for your master's entrance exam now, once you are going into colleges, so you have to prepare for your master's entrance as well, apart from whatever you do in the college. So when you take a master's exam, maybe MBA, or if you take an exam of MCA, if you take an exam of GMAT, whatever exam you're going to take after 2-3 years, what will happen? They will definitely ask, some part of it is there in English. And in English, they're asking you a lot of vocabulary. How will I learn vocabulary? And vocabulary is not the one-day job. I always have been saying that it is gradually you start learning. So that today I decided to make a video for you where I can at least help you to tell you the ways to learn. Though I have discussed these things in different classes when I am teaching one or the other thing, so I am trying to make this video so that if you are really keen in learning English, vocabulary, kindly watch this video and watch it to the end so that you learn. Maybe a little longer, but you will definitely learn by the end of the video. Let's start. So what says, one very basic thing I always have been saying is, you always say root words. Okay, you say I know root words. Okay, you may be knowing, you are very smart, but your smartness has not yielded anything. And those who have been watching, I am sure even not 1% of the students have read that whole book of Word Path Made Easy that I always have been recommending hundreds of times. I've been thundering in my classes to read that. And those who are watching, they can ask their soul, how much have they done? Not even 1% of the people have read that book. You may be knowing root words से कर लेते हैं, करा है आपने? नहीं करा है, करिए sir. It is very important. You will learn. Those who have not gone through that book, they should do, because young students are also studying that. And believe me, when I am teaching a 9th class student, I am forcing the student to read in 9th class rather आप 12th में आके पढ़िए. So 9th class student, if the child or the parents are watching, they can help the child read that book. Or those students, those who are in college, they must read this book. At least you have a bit of the idea how the vocabulary can be learned. I'm not saying reading that book you will become a genius, but you will have a bit of the idea. You will unfold one kind of thing, how to really know vocabulary. I'll just give you one example. Philanthropist, I have given you example hundreds of times. I say one example is, Easter is one word, you know. We say one word is Easter. Okay. When we say the word Easter, we say it is the root word for star. Okay. Easter is one word is Easter. This root word is star, and then we have one root is nomos. When we say the word nomos, we say it is arrangement. I'll give you 2-3 examples, not many, but we'll say this, Aster and nomos. And if you combine these two words, we have got the word astronomy, or we have the word astronomer. Means the one who is interested in learning the arrangement of stars.
ओके, कॉन्स्टलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. एस्ट्रोनॉमर आप देखते हैं टेलीस्कोप लगा के देख रहे होते हैं. व्हाट आर दे डूइंग? एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमस इज द वर्ड, वहां से आप आएगा. तो फिर वहीं से आपने वर्ड सुना है एस्ट्रोलॉजी, यू नो द वर्ड. फिर अगेन आई से एस्टर प्लस लोगोस means science. So we have been saying that Easter, star, we see celestial bodies. Our ancestors have been thinking that these stars they govern our fate and all those things. So यानी astrologer कौन हुआ? Astrologos, वो साइंस जो स्टार की स्टडी करती है, इम्पैक्ट की करती है, मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन. तो फिर आपने एस्ट्रोलॉजर बना दिया या एस्ट्रोलॉजी बना दिया, फिर आपने वहां से देख लिया. तो अगर मैं देखूं वर्ड एस्ट्रोनॉट, हु इज द वर्ड एस्ट्रोनॉट, अगर फिर वे बात देखूं तो एस्टर आ जाएगा. And this Norse word has come from the word naus, and this means ship. Okay? वहीं से पढ़कर आप देखोगे तो वर्ड पढ़ना है नौशिया. कि जब शिप में जाते हो तो थोड़ा सा ऐसे कुछ लोगों को नौशिया हो जाता है, चक्कर आते हैं. पुराने जमाने में होता था, अब तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है बिकॉज शिप थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है. तो पीपल हैव दैट प्रॉब्लम. नौशिया, इट कम फ्रॉम द नॉइस, इट हैज कम फ्रॉम द नॉट्स. देन एस्टर और नॉट मींस हु travels in stars. नहीं तो एस्ट्रोनॉट हो गया. तो फिर आपने वैसे भी पढ़ा है कॉस्मोनॉट होता है. तो कॉस्मोनॉट कहां से आया? कॉस्मिक प्लस नॉट मींस कॉस्मिक मींस क्या? यूनिवर्स. इट मींस यू नो कॉस्मोनॉट इज द फेलो द वन दिस थिंग. नहीं, यहां से भी आप निकाल देंगे. फिर अगर आप देखो तो एक वर्ड होता है, एक ईस्टर, इसे स्टार फ्लावर होता है, फ्लावर शेप में होता है, स्टार शेप में, सॉरी फ्लावर होता है वो स्टार शेप में होता है. ईस्टर अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा ईस्टर क्या है. तो यानी वो भी स्टार शेप में होता है. नहीं, उसी से निकाला है एक वर्ड. और देखिए एक वर्ड आपने शायद पढ़ा हो, एस्टरिस्क. You know asterisk, this kind of star we normally put to highlight something. Suppose आपने यहाँ logos लग दिया तो यहाँ पर आप star लगा देते हो, फिर नीचे लिख देते हो कि ये पढ़ लो, यानी highlight करने के लिए asterisk. ये भी star ही होता है. Now what I'm trying to tell you is writing the word Esther and writing the word nomos and knowing the word logos. I have learned a few words here, and this is what the case is. चाहे वो फिर फिलैंथ्रोपिस्ट से फिल से वर्ड सिखाया हो, या फिर मैंने आपको बोला है कि व्हाट यू कॉल सिंपैथी क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, एंटीपैथी क्या होता है. आई हैव डिस्कस्ड द होल वर्ड पार्ट ऑन माय चैनल. यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. बट व्हाट द आइडिया आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वन वे इज नोइंग द वर्ड्स इज रूट वर्ड्स. दिस इज द बेसिक, यू मस्ट फॉलो दिस. एक तरीका तो ये है, आप इसे करिए. दिस विल ऐड ऑन टू योर वोकैबुलरी. This is the basic thing you really need to do. Okay, kindly note this. I will go to the next section. So another way of doing this is by prefix and suffix. That is, second way of doing vocabulary is prefix and suffix. स्कूल में पढ़ा था prefix suffix, but कभी किया नहीं, और ना ही टीचर्स ने कराया. Probably that curriculum we have in our schools does not provide you enough time to go through all these things. आइडिया जरूर हमें मालूम है कि प्रीफिक्स सफिक्स होता है, सब कहते हैं हाँ 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 आता है, कभी बॉदर नहीं करा कि उसको मैं पढ़ूं. When we give you a chart कि ये प्रीफिक्स होते हैं, ये सफिक्स होते हैं, कुछ नहीं कोई करता. गूगल देखोगे तो 50 साइट हैं जो प्रीफिक्स सफिक्स के आपको टेबल दे रही हैं. कभी हमने लर्न ही नहीं करा. बट हाँ, कुछ तो कर ही सकते हैं. 10, 20, 50, 100 will help you. कितनी बार आपको ये हेल्प करने वाले हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो मैं इन वर्ड लगाता हूं. तो आई ऑलवेज हैव बीन सेइंग इन जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स होता है. आई डिस्कस दिस इन माय क्लासेस. आई से
इनएक्टिव होता है, तो फिर इनएप्रोप्रिएट होता है, तो आप कह रहे हैं इनसेंसिटिव होता है। इट मीन्स इन लगाने से नेगेटिव बन रहा है, तो फिर मैल भी तो वही है, मैल इज ऑल्सो नेगेटिव प्रीफिक्स। ओके, इट मीन्स आप कहते हैं माल नरिश्ड हो जाता है, देन से मैल कंटेंट हो जाता है, यानी डिससेटिस्फाइड वे से नहीं, तो देन से मैल प्रैक्टिस हो जाती है, रॉन्ग प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, मैल प्रैक्टिस होती है। देन वी हैव द वर्ड मैल कंटेंट हो जाता है, यानी I've written the word malcontent, yes. So malnourished, malcontent, malpractice, ठीक है। तो ये जब भी mal word आएगा, malevolent word होता है, तो I can write the word malevolent होता है, means जो दूसरों को हार्म करे। benevolent होता है, उसका अपोजिट आपका malevolent होता है। तो यानी mal लगाने पर नेगेटिव 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 आ रहा है, that's what the case is, okay? तो फिर ऐसे ही मिस भी होता है, मिस इज ऑल्सो नेगेटिव प्रीफिक्स, अगर आप देखोगे, मीन्स व्हाट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो खैर सभी को मालूम है, नहीं, मिस अंडरस्टैंडिंग दैट वी नो वर्ड, एंड वी नो द वर्ड मिस एंथ्रोप। क्यों मिस एंथ्रोप कौन, और mismanagement, we can say. Then a few words, I'm just trying to give you the idea. When you say the word misunderstanding है, then misanthrope है, hater of mankind है, mismanagement है. It means ये मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी वर्ड के आगे मिस देखता हूँ, मैल देखता हूँ, इन देखता हूँ, ठीक है जी, अन देखता हूँ, डिस देखता हूं, ये सारे के सारे ही तो नेगेटिव प्रीफिक्स हैं। इट मींस इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ प्रीफिक्सेस, ऐसा नहीं है नेगेटिव प्रीफिक्स ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इट मींस इफ यू हैव द प्रीफिक्सेस, दे कैन गिव यू अ बिट ऑफ द आइडिया अबाउट द वर्ड। इट मींस अगर हम 5, 6, 10, 20 ये लर्न करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100 वर्ड्स हो जाएंगे। यू हैव टू लर्न दिस 20। लर्न मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ओके यार ये मतलब होता है, बस बात बन जाएगी। इट मीन्स यू कैन जस्ट ग्रैब ए फ्यू प्रीफिक्सेस एंड देन फ्यू सफिक्सेस। इट मीन्स अगर आपने 20 ये करे तो 100 वर्ड लर्न कर लिए, 20 सफिक्स करे तो 100 कर लिए, यानी 200 वर्ड्स हो गए। नहीं, दैट्स द वे यू नीड टू डू। काइंडली नोट दिस, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सफिक्सेस एज वेल। काइंडली नोट दिस। Let's see a few suffixes as well. If I say like this, al, okay, we can start with something. al, ये क्या बताता है? ये किसी की कंडीशन को बताता है या किसी क्वालिटी को बताता है। यानी किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के पीछे अगर आप al लगा देते हो तो फिर वो उसकी कंडीशन को बताने लगता है या उसकी क्वालिटी को बताने लगता है। डिसमिसल है, अराइवल है, अप्रूवल, यानी इट इज बीन अप्रूव्ड, तो वर्ब हो गया, बट आई एम वेटिंग फॉर द अप्रूवल। अप्रूवल इज द काइंड ऑफ कंडीशन कि भैया अप्रूवल हो गया, उसकी क्वालिटी क्या है, यानी पास हो गया, फेल हो गया, तो अप्रूवल हो जाएगा। नहीं, डिसअप्रूवल भी हो सकता है, डिस लगने पर वो नेगेटिव वाला प्रीफिक्स हो जाएगा। नाउ यू नो एल लगाने पर कैसे वर्ड बनेगा। SION करके किसी के पीछे लगा हो तो व्हाट डज इट से। SION लगाने पर ये किसी स्टेट को बताता है या किसी सिचुएशन में आपकी प्रेजेंस क्या है, वो स्टेट और बीइंग को बताता है। दिस पे तो वी से रिवीजन, you say the word division, नहीं, डिवीजन लगाइए, डिवीजन लगाइए और डिप्रेशन लगाइए। आपने तो वर्ड IUN लगाकर क्या करें, SION लगाकर क्या किया है आपने, सॉरी, ये जस्ट ट्राइंग कि वो किस स्टेट में है, रिवाइज, रिवीजन की स्टेट में है।
वो डिवीजन की स्टेट में है, डिप्रेशन की स्टेट में है। IO1 लगाकर आपने बताया है क्या, ऐसी ERY लगाते हैं। VRY में ना कहीं किसी बिजनेस या किसी वो ट्रेड को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि वर्ड अगर मैं बोलूं बेकरी है, मशीनरी है, स्लेवरी है, काइंड ऑफ दिस। सो ए पर्टिकुलर ट्रेड इंडिकेट करने लगते हैं, दैट्स व्हाट वी से इज ER कई लगाने पर आ जाता है। इट मींस अगर मैं ये देखूं तो यार इससे आइडिया लग जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं इसका एडजेक्टिव बनाओ, इसका एडवर्ब बनाओ, इसका ऐसे बनाओ। आई नीड टू नो यार हाउ डज इट गो। इफ आई नो दिस, though they seem very silly, like when we go through books and when I find that people flipping these pages and not bothering, I think they are making a blunder, not only mistake. You have to spend time with this. It may sound very silly, it may sound very sixth form job, but sixth में आपने नहीं पढ़ा तो 16th में पढ़िए, कभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। If you really want to do something good, बाकी you are in the driving seat, जैसा as you sow so shall you reap. But if you want to learn vocabulary, you need to work on your prefixes and suffixes. ठीक है? Then I always have been doing many videos I have made on mnemonics. In the recent past, I have not been able to make any video on mnemonics, but I have made a few videos on mnemonics for you people. Okay, I write a word, a few words there is. Let me write the word first. ठीक है? Say like that. Now, if you know the words, perfectly all right. But if you do not know, I can help you in learning in a very easy way. I always have a saying. If you just see this, malodorous is, first of all, I write the meaning. Foul smell is the word. Malodorous. आप खुद ही देख रहे हैं, मैल और दिस है, यानी अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैल है प्लस ऑडोर है। ऑडोर तो जानते हो ना, स्मेल होती है, और मैल लगाने पर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बैड स्मेल हो जाएगी, मेलॉड्रस हो जाएगा। मैल ऑडोर, मैल ऑडोर, ऑडोरस मेलॉड्रस हो जाएगा। हाइटस हो जाता है। हाइटस इज सम काइंड ऑफ ब्रेक होता है, kind of when you're doing something continuously, so this hiatus can give you enough of the energy to work again. हाइटस हो जाता है, दैट इज द हाइटस है। कोई भी किसी काम के बीच में एक ब्रेक आएगा, हाइटस हो जाता है। तो मैंने तो ऐसे याद किया, अगर आप देखो तो ब्रेक है, तो हाइटस को ऐसे नहीं करते हैं। देखो, देयर इज समथिंग हाई एट अस, मींस अगर कोई आपको हाई करता है, आप पढ़ रहे हैं, हाई करता है, तो क्या होता है, आप नजर तो उठाते ही हैं। जैसे आप नजर उठाते हैं, आपका ब्रेक हो जाता है। इट मींस इफ यू समवन हाई एट अस मींस इट डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ ब्रेक। तो हाइटस इज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वी से लाइक दैट ओनली। ठीक है, फिर जॉन्टी इज समथिंग वेरी अजाइल होता है, वेरी लाइवली होता है, वेरी एक्टिव होता है, जॉन्टी होता है, जॉन्टी होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो एक जॉन्टी रोड्स करके एक प्लेयर होता था। If you know, South African player, he was Jonty Rhodes. भाई उसे रबड़ मैन कहते थे यार। मतलब he was, आप कभी देख लीजिए, kind of catches he has taken and the kind of fielding he has done is something super flexible man. Okay? मतलब हवा में कैच ऐसे वाले पकड़ना जो आप assume भी नहीं कर सकते। He has done those kind of miracles. Jonty Rhodes is the fellow. तो मुझे तो वैसे याद है क्रिकेट से एसोसिएशन जॉन्टी रोड्स है। तो जॉन्टी मतलब जैसे वो अजाइल, वो एक्टिव था, तो मुझे याद है कि ऐसे ये जॉन्टी रोड्स होता है। ओके, एन्यूमरेट करना होता है। एन्यूमरेट, अगर आप देखो तो ई एन नंबर, मुझे तो ऐसे याद, एन्यूमरेट से सॉरी से
one by one. Let me say the spelling. Sorry, word meaning. Enumerate is one by, say one by. आप आ गए, आपने पूरी लिस्ट बनाई, आपने कहा सर ये वर्ड है, ये वर्ड है, मैंने कहा नहीं यार, you enumerate them means say one by one. First ये, second ये, third. Enumerate means one by one आप बोलिए, enumerate करना होता है. तो one by one बोलना होता है. अब आप कैसे बोल रहे हैं? Enumerate है. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो n है और नंबर है, नहीं, n numerate और फिर 8 है, यानी you say whatever say something, आप नंबर से आप उसे एनुमरेट करिए, 8 करिए, एनुमरेट करिए मींस नंबर से बोलिए, एनुमरेट करना चाहते हैं, से वन बाय वन. ओके, पैरागॉन होता है. पैरागॉन को बोलते हैं व्हाट इज व्हिच वी से ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, वी से पैरागॉन. ओके, तो पैरागॉन को तो देखो यार, पैरी तो है, फिर गॉन है. अगर आप इसे गॉन को गहना समझ लो तो पैरों में पहनने वाला गहना क्या है? वो तो भैया आपका चप्पल ही है जो तुम पहनते हो. अगर मार्केट में देखो तो पैरागॉन का ब्रांड आता है. पैरागॉन कहते ही आप लोग, मैंने क्लास में 50 बार पूछा है, लोग चप्पल बता रहे होते हैं. पैरों में तो पहनते हैं पैरागॉन. वो बाय द वे ब्रांड ही हमारे यहाँ पर था, बट यू कैन लर्न इट इजीली, वहां से भी याद हो जाएगा. पैरागॉन होता है. देयर इज वन वर्ड फॉर दिस इज पैराडाइम होता है. वन वर्ड इज एपिटमी, वर्ड इज द वर्ड. ये सारी सुप्रीम एग्जांपल के लिए यूज करते हैं वर्ड. पैरागॉन एंड ये जो है पैरागॉन हो जाए, पैराडाइम हो जाए, एपिटमी हो जाए, मींस व्हाट? इफ यू नो द वर्ड, आई हैव डन अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू स्लाइड्स आल्सो विद यू. मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं और देखो ये निमोनिक से भी किया जा सकता है. ये 3 तरीके तो जो हैं हार्ड कोर हैं, इस पर तो आपको रेगुलरली वोकैबुलरी पर काम करना ही चाहिए. ओके, तो इतना नोट करिए. इसके आगे मैं आपसे और डिस्कस करता हूं व्हाट एल्स वी कैन डू. So now we know how to do this. One I was saying is root words. Okay. Secondly, I said is prefix and suffix. And thirdly, I said is mnemonics. Okay. These 3 are very important. Now fourth, read as much as you can, but read slow, I say. Okay? अब जब आप रीड करते हो कुछ भी, you really need to read. And I say, I always have been saying, you, it's up to you, but I always say, read aloud. इतना ऊंचा बोलिए कि आपके कानों को सुनाई दे. That is a better way of learning. Whenever we are doing our all 5 senses are active, we learn better. अब मन में भी पढ़ सकते हैं. See, 2020 आप लोग नई जनरेशन के हो, लेकिन बेस्ट वे इज आपको सुनाई देना चाहिए. तो रीड अलाउड, थोड़ा ऊंचा बोल के पढ़िए, वो वर्ड आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा. रीड अलाउड. नाउ व्हेन यू आर रीडिंग, आई से note all the words in a notebook, but note them alphabetically. उनको अल्फाबेटिकली नोट करिए. आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप नॉवल पढ़िए, whatever you read, no issues. I still say न्यूज़पेपर पढ़िए. नॉवल में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, आप कहानी मिस करते चले जाओगे, कहानी के चक्कर में आप आगे चले जाओगे, पेज नहीं पढ़ोगे. Read newspaper if you can. My old refrain I always say. But when you are reading anything, what choice is yours. If I do not know this word, if I do not know this word, if I do not know this word, I keep underlining that area and keep reading. आपने पढ़ लिया पूरा पेज, आपको लगा मैंने 2 पेज पढ़ लिए, बहुत खुश हैं आप, बढ़िया है. लेकिन जो वर्ड आपको नहीं आते थे वो एक कॉपी बनाइए, ABCD XYZ सेक्शन करिए, उसमें लिखिए.
ए वाला वर्ड ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में लिखिए और उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग वहां पर लिखिए और उसके वर्ड मीनिंग में सेंटेंसेस बनाइए। आई से व्हेन यू नोट इट डाउन, मेक सेंटेंसेस। वर्ड मीनिंग आप जैसे मर्जी बनाइए, वर्ड मीनिंग चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको अच्छा लगे अपनी उस कॉपी में लिख लीजिए, लिखते रहिए और ABCD करके लिखिए। आई विल से बड़ा क्रूड तरीका है, एटलीस्ट 10 वर्ड्स ए डे का आप एजेंडा बनाइए। आपको इससे ज्यादा ही वर्ड मिलेंगे, आई एम श्योर, बट आप 10 वर्ड्स एटलीस्ट ए डे करिए। डोंट ट्राई टू डू दिस मच, इट विल बी स्ट्रेन। छोटा छोटा, टेक स्मॉल स्टेप्स and then you learn 10 words every day. 365 days means 3650 word. Once you know 5000 words, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो what I say is आपने ये वर्ड नोट करें, ठीक है? Now revise them continually. आप put time and again रिवाइज करिए, फ्लिप द पेजेस, यू हैव रिटन द वर्ड्स, यू हैव रिटन द मीनिंग, यू हैव रिटन द सेंटेंसेस। आई थिंक दिस इज इजी टू रिवाइज। मैं आपकी जो कहूंगा तो मैं रिवाइज करूंगा, अपने भाई बहन को कहूंगा या सुन लो। यू विल से कि मैं मगअप करने के लिए कह रहा हूं, तो हाँ मगअप करने के लिए कह रहा हूं। यू रियली नीड टू मगअप, यू रियली नीड टू मगअप। डोंट फील शाई ऑफ सेइंग दिस, एक्सेप्टिंग इट। आपने कौन सा वर्ड लर्न नहीं करा, आपने कौन सा वर्ड मगअप नहीं करा, क्या प्रायश्चित आपने लर्न नहीं करा, या उसको पिताजी बोलते हैं, उसको बाप बोलते हैं, या उसको माताजी बोलते हैं, ये लर्न नहीं करा, या भगवान के घर से लेकर आए थे, नहीं ना? यानी वी हैव लर्नड ऑल दीस वर्ड्स माय डियर, दैट इज हिज लैंग्वेज, आई विल लर्न इट, इट इज माय लैंग्वेज दैट आई हैव लर्नड। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने लर्न करा है, लेकिन बचपन से बेटा वो भी हमने लर्न नहीं करा है। तो व्हेनेवर यू गेट स्टक, लर्न द वर्ड यार, मगअप कर लो उसको, रिपीट करो, उसका सेंटेंस बनाओ, बस हो जाएगा। ओके, डोंट फील शाई। सी, शाई अब कब फील करेंगे जब आपको नहीं आएगा, मार्क्स कम आ जाएंगे, तब आप शाई फील करेंगे। अभी कोई शाई फील नहीं करेगा। वो पूछ नहीं रहा है अमेरिकन, वो रॉबर्ट, वो कोई आपको कि बेटा तूने कैसे लर्न करा है। लर्न इट द इजी वे इज, जहां आपको समझ आता है वहां समझ लीजिए, जहां नहीं समझ आता वो मगअप कर लीजिए। जब आप मगअप करते हैं तो आई से relate these words, देखो कैसे मगअप होता है, to some person or something, जल्दी लर्न हो। देखिए मैं अपनी क्लास में कहता हूं, एक वर्ड है सैडिस्ट। कौन होता है सैडिस्ट? जो दूसरों को दुख देकर खुश होता है वो सैडिस्ट होता है। यही तो सैडिस्ट है, नहीं? तो आपको सैडिस्ट वर्ड नहीं आता था, लेकिन आपने पढ़ा, आपको भूल गया। अब नहीं भूलेगा अगर मैं आपको कहूं कि आपने वो 3 इडियट में जो उसका प्रिंसिपल था उसको आपने देखा था और वो सैडिस्ट था, वो दूसरों को दुख देकर खुश होता था। आप कहेंगे हाँ हाँ भाई ऐसे ही था, तो यानी आपको याद रहेगा ना सैडिस्ट कौन होता है, बस बात बन जाती है। अगर आपको वर्ड नहीं याद रहता, गलीबल कौन होता है? जो दूसरों की बात में जल्दी आ जाता है, भोला भाला होता है, दूसरे उसको अपने काम करवा के निकाल लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा वाला गलीबल होता है। तो आप गलीबल कौन? आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई आपका ऐसा फ्रेंड होता है, आपने हमारे सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो बड़े भोले वाले से होते हैं, जल्दी से लोग उनको ट्रैप कर लेते हैं किसी ना किसी, चाहे वो अंकुश हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे कोई भी हो, नड़ान हो, कोई ना कोई तो आपका फ्रेंड सर्कल में कोई होता है। इसको याद करिए कौन है, देन वी लर्न इट। अगर मैं कहता हूँ अनार्किस्ट है, तो अनार्किस्ट कौन? काइंड ऑफ थिंग, जो द वन हु does anarchy, does not follow and rules and regulation, anarchy होती है। तो anarchy आपको पता ही है, अगर आप यूपी का केस देख लो तो डेली there have been certain incidences, I do not want to name anything here, but you can very well understand the rules and regulations are blatantly defied, so this is anarchy है। तो relate something to the word, relate this word to something, you will come to know यार eccentric कौन है। आपने MML पढ़ा था, eccentric समझ आता है, eccentric कौन है, weird कौन है,
यू जस्ट रिलेट द वर्ड टू समवन समथिंग, आपके सर्कल में आपने आपको फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन कितने वर्ड के लिए? 10 वर्ड्स के लिए तो आपने फोर्स करना है डेली, इसके लिए हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा। आई थिंक दैट विल डू द जॉब। अगर आप इतना कर लेंगे तो मेरे हिसाब से एजेंडा क्या है? एजेंडा है 5000 वर्ड्स अ ईयर। डेली 10-12 वर्ड्स करेंगे, 5000 वर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद द वर्ड्स आफ्टर दिस आर रिलेटेबल बाय लुक्स, मीनिंग्स एक्सेट्रा। आप देखोगे एक जैसे ही वर्ड होते हैं यार, आइडिया लगने लगता है, अच्छा यार ऐसा होगा, अच्छा यार ऐसा होगा, अच्छा यार ऐसा होगा, पता चल जाता है। अगर आप देखो वर्ड मैं बताता हूं, अले होता है तो उसी के नीचे वर्ड लिखो एली होता है, फिर उसी के नीचे लिखो वर्ड आइल होता है, उसी के नीचे लिखो वर्ड आइल होता है, उसी के नीचे वर्ड लिखो अलाई होता है। देखो सारे वर्ड एक जैसे ही तो हैं, एक जगह लिख के करोगे धीरे धीरे समझ आने लगेगा। ओके यार, दीज वर्ड्स आर लाइक दिस ओनली, यार इस तरीके से चल रहा है। यू विल कम टू नो द वर्ड लाइक दिस ओनली। इजी 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 समझ आएगा। ओके, और दिस वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड, बिलीव मी। अगर आप इंडिया में रहते हो तो भी आपको एमबीए करना है, एमसीए करना है, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आईआईटी वाले के लिए कुछ नहीं, आईआईटी वाला भी घूम फिर कर आएगा तो एमबीए करना ही एक ना एक दिन। और अगर वो बाहर जाएगा एमएस करने के लिए तो फिर भी जीआरई का पेपर देना होगा, फिर इंग्लिश करनी होगी, फिर वो वोकैबुलरी ही पूछेगा। तो कहाँ जाओगे? आपको आइल्स करना है, आपको टॉफल देना है, फिर वोकैबुलरी होगी। इट मींस इससे आप भाग नहीं सकते हैं। बट इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस टुडे, यू आर वेस्टिंग योर प्रीमियम टाइम व्हेन यू आर सिटिंग एट आइडल एंड देन कर्सिंग द अथॉरिटीज की कुछ नहीं कर रहे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप पढ़ो ना। अब यू आस्क योरसेल्फ, अपनी आत्मा से पूछ के देखो आपने क्या किया 6 महीने में। You have already wasted the time if you have not read few novels, you have not read newspaper, you have not learned vocabulary, you have not done justice to your time, except cursing the authorities. System सब जगह ऐसा ही चलता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा है। Everywhere system is like this only. यार ये changes होते हैं तो ये सब problem, teething troubles are there. Instead of cursing them, build your vocabulary, read something substantial, and this will pay you in the longer run. यार आप इसको करिए। और 5000 वर्ड्स को जब व्हेन यू रिवाइज ना, व्हेन यू रिवाइज, मैं गारंटी करता हूं आपको 3000 वर्ड्स यू नो एंड 2000 कैन बी आंसर्ड इन एग्जाम। जब आप देखोगे एग्जाम में वो वर्ड जाना पहचाना होगा, अपने आप ही आने लगेगा। आप 5000 वर्ड 10,000 वर्ड आपने वोकैबुलरी बना ली, एग्जाम से एक वीक पहले सारी वोकैबुलरी को फटाफट फटाफट रिवाइज करिए, सब याद हो जाएगा यार। ऐसा नहीं है। एंड वंस यू नो वोकैबुलरी, you will start using in your daily routine and your language will be different, you know, and that will make you a different person, a breed apart from rest of the group, and this will pay you in the longer run. But this cannot be done in one day, I say. So if you want to do something, I say practice. Don't lose hope. लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर वोकैबुलरी नहीं हो रही, सिनो इनो बोलते हैं, पता नहीं क्या साइनो एंटो बोलते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम नहीं हो रहा। यार होगा कैसे? आपने करा ही तो कहाँ है। 3 दिन पहले एग्जाम से पहले आकर कहते हो साइनो एंटो नहीं हो रहा। भाई ऐसे नहीं होगा। हमें नहीं आया, इतने साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पूरी डिक्शनरी थोड़ी याद हो गई है। But हाँ, we know many tricks, we have learned so much, read so much, we have been teaching. तो ये क्या वो day and night we are doing, हमें आता है। For you, the way is you also like start inculcating. So if you imbibe word every day, I think you will enhance your vocabulary. That will do. But don't lose hope. आप ये मत सोचो कि हो नहीं सकता। I say don't lose hope. Be patient and consistent. That is very very important. आपको रेगुलर करना है, रिलीजियसली आप करिए।
रिलीजियस समझते हो ना? रिलीजियस का मतलब जैसे आप समझते हो कि आज पूजा नहीं करी तो हनुमान जी मारने आ जाएंगे, या राम मंदिर नहीं गए तो ये हो जाएगा, या नमाज नहीं पढ़, ऐसा नहीं। जैसा आपको वो डर लगा हुआ है ना, वैसा वाला अगर आप एक दिन आपने वोकैबुलरी लर्न नहीं करी है तो यार आपको लगना चाहिए ओह आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इट इज सिंफुल। मान लीजिए ना, ऐसा करिए, कंसिडर लाइक दैट ओनली यार। आपको इसको रिलीजन नहीं मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क लाइक फैनेटिक on this particular thing, ठीक है? And if you do this, I say, if you do this, you will, I can guarantee you, not assure you, 1 year is sufficient enough to make you feel, oh my God, how much have you learned? Take my word, start now. You start doing 10 words a day, the way I have told you. Open your books, spend time with books. You have to be different in the whole lot, my dear. Market में jobs are there and job seekers are there, but those who are providing job are looking for a complete package. You have to be different in the group, and for that matter, if you talk of English, this will pay you in the longer run. Start doing it today, drop by drop you find your picture filled. You know so much and lot more than your friends. I can suggest you, ultimately you have to do all this on your own. I'm always there for your help. Hope you watch this video and you will work it accordingly. Any help, you have my number, though I'll write my number again here. Be in touch. Thank you very much. God bless you all.